Hi everyone, welcome back to a new episode from DGMZ, Diwane Galib Meri Zubani. To all our returning viewers, we are very happy that you could join us again for a new episode. And for the new viewers, we are glad that you discovered the podcast and decided to tune into the podcast for the first time. Now, if you were with me in the last episode, you would know that currently we are going through Ghazal 20 from Dibane Ghalib. We have already covered two episodes and posted them for this Ghazal. Today we are going to get into the third part. So, two parts have been posted. This is the third part of the Ghazal, and today we will complete this Ghazal. So, if you have not accessed the first two episodes, feel free to tune into those. But today I'm going to read the three couplets we are going to cover, not the entire Ghazal. If you want the entire Ghazal narration, part one has that. So, this is how it goes. गर किया नासे ने हमको, गर किया नासे ने हमको, कैद अच्छा यूं सही, ये जुनूने इश्क के अंदाज छूट जावेंगे क्या। खाना ज़ादे जुल्फ हैं, खाना ज़ादे जुल्फ हैं, जंजीर से भागेंगे क्यों। है गिरफ्तारे वफा, जिंदा से घबरावेंगे क्या। मक्ता अर्ज किया है अब इस मामूरे में, है अब इस मामूरे में, कहते गमे उल्फत असद, है अब इस मामूरे में, कहते गमे उल्फत असद, हमने ये माना कि दिल्ली में रहें, खावेंगे क्या। So, let's dive into the fifth couplet from the ghazal. गर किया नासे ने हमको, कैद अच्छा यूं सही, ये जुनूने इश्क के अंदाज छुट जावेंगे क्या. Not a lot of complex words in this share, but still, let's do an approximate translation quickly. गर किया नासे ने हमको कैद. If the advisor or the consultant who has come to visit me decides to imprison me, नासे advisor consultant, कैद imprison me. अच्छा यूं सही, so be it. So if the advisor or consultant decides to imprison me, so be it. ये जुनूने इश्क के अंदाज. Beautiful, huh? Junoon ishq, the fervor, the passion of love, the ecstasy of love. And andaz, ways, right? So the ways of the ecstasy of love or passion of love or fervor of love. Chut javenge kya? Will they be abandoned? Will they be stopped? Will they be arrested, contained? So the approximate translation is, even if the advisor decides to put me in the prison, so be it. It's okay. The question I have is, will the ways of my fervor and passion and love change, be abandoned by me, right? Be contained. So, एक बहुत ही लाजमी सवाल पूछ रहे हैं गालिब इस शेर में कि जब द सो कॉल्ड गुनाह जो मैं कर रहा हूँ वो दिल से हो रहे हैं, क्योंकि दिल है जिसमें प्यार है, और दिमाग से हो रहे हैं क्योंकि दिमाग है जिसमें जुनून है इस प्यार का, तो कोई मुझे ये समझाओ कि when the sins are committed by the heart and the mind, how does
putting the physical body under constraint or in a prison help? Can you control the heart and the mind by putting force on the body? The heart and mind have their own ways. You cannot. So basically that is the gist of it. But of course गालिब अपने स्टाइल में ये बात कह रहे हैं. So let's get into it. पहली लाइन, गर किया नासे ने हमको कैद अच्छा यूं सही. So Ghalib is, though he's asking as if these are sins, we have to keep in mind that ये जो जुनून और दीवानगी और जुनून इश्क जिसे कह रहे हैं इस शेर में, इनको आशिक गुनाह नहीं समझता है. ये नासे हैं, द एडवाइज़र, द कंसल्टेंट, हज़रत नासे फ्रॉम द फर्स्ट पार्ट ऑफ द गज़ल, राइट. ये वो लोग हैं जो कि इस चीज़ को गुनाह समझते हैं. दीज आर द पीपल हु परसीव लव एंड द एसोसिएटेड पैशन एंड फर्वर एज सिंस. Ghalib doesn't. Ghalib, as a ashik or as a lover, in fact takes this as a matter of pride. जिस तरह से हम लोग देखते हैं कि the beloved feels a sense of pride in owning her beauty, right? The lover also feels the same sense of pride in owning his passion, fervor, frenzy, divangi, junoon, stemming from the love he has for the beloved. So आशिक के लिए जुनून इश्क गुनाह नहीं है. आप उसको गुनाह का नाम देकर आशिक को उसकी सज़ा दे सकते हैं, but that in no way is going to change the ashik's take on जुनून इश्क. In fact, आशिक के लिए it is a matter of pride. It's a blessing. It is actually what he flaunts, with pride, or what he treasures. It is one of his most treasured things. अब ये मोइद रहबार का शेर देखें. जुनून इश्क जिसे सर फिरा बना देगा. जुनून इश्क जिसे सर फिरा बना देगा, पहाड़ काट के वो रास्ता बना देगा. Beautiful couplet. The approximate translation is, the person who is led to being crazy because of the passion he feels in love is a person who has the potential to cut through a mountain and create a path. And of course, the reference is to the story of Shiri and Farhad. We have covered that story in previous episodes, and briefly put, Farhad was tested, his love was tested, and he was asked to cut through this huge, daunting mountain and actually create a river, or make a river of milk flow through that mountain to prove his love. And apparently he almost did that, but then he was tricked into killing himself. So ये जो इश्क जुनू है, ये तो आशिक की ताकत है, ये तो आशिक की इंस्पिरेशन है, म्यूज़ है. ये है वो ताकत जो आशिक को एकदम एक नॉर्मल इंसान से एक ऐसे लेवल पे ले जाती है जहाँ वो पहाड़ काट के रास्ते बना सकता है. द मोस्ट डॉन्टिंग टास्क कैन बी अचीव्ड, can be completed by the lover because of this junoon ishq, because of this frenzy and this passion and this fervor that the love for the beloved brings out in him, right? So आशिक का तो टेक बहुत different है. And then मंजूर हसन नामी का ये शेर, ये जुनून इश्क काम आ ही गया, उनके दीवानों में नाम आ ही गया. सो बेसिकली ये तो ऑब्जेक्टिव है. आशिक अपना जुनून इश्क बढ़ाता जाता है जब तक या तो बिलवेड रेसिप्रोकेट ना कर दे लव, या एटलीस्ट
he doesn't attain this status of being one of those crazed lovers, right? That are completely in love with the beloved, right? A love that has reached the level of crazy, right? Junoon, ishq junoon. सो गालिब पहली बात तो जब ये सवाल कर रहे हैं तो साफ जाहिर है कि उनके दिल में कोई ऐसी बात नहीं है कि अरे ये मेरा गुनाह है, अब इसके लिए मुझे सज़ा मिल रही है. ही इज़ वेरी कूल अबाउट इट. इट सीम्स वो बोलते हैं, गर किया नासे ने हमको कैद, अच्छा यूं सही, चलो ये भी कर लो, सो बी इट. इस गालिब प्रिजन में खुशी खुशी जा रहे हैं क्योंकि उनको तो पता है कि ये जो गुनाह हैं दिल में प्यार के और दिमाग में जुनून के, इन गुनाहों पे तो इस प्रिजन का कोई असर ही नहीं होगा, क्योंकि ये प्रिजन तो फिजिकल बॉडी को प्रिजन करेगा. दिमाग और दिल तो आज़ाद हैं, उनको कैसे रोकोगे आप? हाउ विल यू स्टॉप द हार्ट फ्रॉम लविंग? हाउ विल यू स्टॉप द माइंड फ्रॉम बीइंग क्रेजी इन लव? हाउ विल यू डू दैट? एंड अगेन वो जैसा वो पुराने शेर में नहीं पूछते हैं बड़ा लाजमी सा सवाल कि कोई तो मुझे समझा दो कि समझावें कि गालिब को बात ही नहीं समझ में आती कि ये लोग कितने शॉर्ट साइटेड हैं. वो नाखून वाला शेर भी जो है ना, जख्म के भरने तलक नाखून ना बढ़ जावेंगे क्या? गालिब कहते तुम लोग ऐसे शॉर्ट साइटेड सोल्यूशंस लेके आ रहे हो, इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है. जो तुम्हारी सो कॉल्ड प्रॉब्लम या सिन है मेरे अंदर, जिसको तुम क्योर करना चाह रहे हो, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, राइट? नाउ सेकेंड लाइन में जो वो बोलते हैं, अभी चलो अच्छा फर्स्ट लाइन का ये एक और पहलू कर लेते हैं एक्सप्लोर बिफोर वी मूव ऑन टू द सेकेंड लाइन. सो गर किया नासे ने हमको कैद, right? So prison, imprisonment. गालिब का एक और शेर है, वी कवर्ड इट इन गज़ल 1. बस के हूँ गालिब असीरी में भी आतिश ज़ेरे पा, बस के हूँ गालिब असीरी में भी आतिश ज़ेरे पा, मुआए आतिश दीदा है हल्का मेरी जंजीर का. इफ़ यू वांट द होल इम्प्रेशन, feel free to access Ghazal 1, Naqsh Faryadi hai kiski shokhi hai tehreer ka. But for today's episode, enough to say that in this couplet Ghalib is saying that they have put me in the prison. They have put me in the prison. Bas ki hu Ghalib asiri mein. In my imprisonment, aatish zere pa. Even in my prison, it is as if there is a fire burning beneath my feet. Right? And by extension, if you have fire burning beneath your feet, will you stay in one place? No. You will be in continuous motion. Right? And then he says, Muay aatish dida hai, halka meri zanjeer ka. So just like the singed hair are the shackles on my feet. And we know singed hair probably is the most friable, most fragile thing one ever will come across. You touch it and it just crumbles. That is the state of the chains people have put around his feet. Those chains have become just like singed hair because the feet of Ghalib have this continuous fire. And fire, by extension, fire of passion, fire of love, fire of creativity, fire of saying what you want to say. Continuous fire burning. Prison has done nothing to dampen it. In fact, probably has made it even more fierce, more intense. And that fire has burned all the shackles in his feet. Inside the prison, he is freed because of the fire he carries inside of him. So, prison to आशिक के लिए प्रॉबली एक फुर्सत का मौका है जहाँ वो आराम से बैठ के इत्मीनान से अपने दिल और अपने दिमाग के जुनून इश्क में अच्छी तरह उसको इंजॉय कर सकता है, उसमें इंडल्ज कर सकता है.
मसरूफ़ रहेगा आशिक जेल में अपने जज्बातों के साथ, उसको कौन रोकेगा? उन जज्बातों को कौन रोक सकता है, राइट? एंड यहाँ पर गालिब ऑफ कोर्स दाद तो देनी पड़ेगी उनके लिखने के स्टाइल की, बात तो समझ में आ गई है, पर बात खूबसूरत है और बात कहने का अंदाज उससे भी खूबसूरत है. सो आप देखिए जब वो कहते हैं कि वेयर इज माई शेर, जब वो कहते हैं गर किया नासे ने हमको कैद, अच्छा यूं सही, एंड दूसरी लाइन में बोलते हैं ये जुनूने इश्क के अंदाज छुट जावेंगे क्या. सो पहली लाइन में कैद, दूसरी लाइन में छुट. पहली लाइन में इन द फर्स्ट लाइन ही इज टॉकिंग अबाउट imprisonment, in the second line he is talking about freedom, right? And that is the way, that is the style of saying it, that the way he is combining imprisonment and freedom in the same couplet. Of course what he is trying to say is that नासे इश्क के अंदाज को कैद नहीं कर सकता. नासे मुझे कैद कर सकता है, मेरे शरीर को कैद कर सकता है, पर मेरे जो इश्क के अंदाज हैं, जुनून इश्क के अंदाज हैं, उनको कैद नहीं कर सकता. बट वो इस तरह से नहीं बोला है, गालिब ने अपने यूनिक स्टाइल में बोला है उल्टा करके कि नासे ने इश्क के अंदाज तो कैद कर दिए, पर क्या मेरे से वो इश्क के अंदाज छुड़वा सकता है. सो वही बात उल्टी करके बोली है. एंड ऑफ कोर्स सवाल पूछ नहीं रहे हैं किसी से, क्योंकि सवाल में जवाब है कि छुटवा सकता है मतलब नहीं छुटवा सकता है, नहीं छुटवा सकता है. ना से इतना इंटेलिजेंट एडवाइज़र, राइट? पर ये छोटी सी बात उसको समझ में नहीं आई है कि मुझे कैद करने से जुनून इश्क के अंदाज कैद नहीं हो जाएंगे, है ना? मेरे को कैद करने से जुनून इश्क के अंदाज छुट नहीं जाएंगे मेरे से, मैं तो उनको पकड़ के रखूँगा, कैद में भी पकड़ के रखूँगा. बस के हूँ गाले बसीरी, मैं भी आतिश दे रे पा, मुँह आतिश दीदा है हल्का मेरी जंजीर का. सो लाइक आई सेड, a little short-sighted approach of Nase, in terms of putting Ghalib into the prison. Let's move on to the next couplet. खाना ज़ादे जुल्फ हैं, जंजीर से भागेंगे क्यों, हैं गिरफ्तारे वफा, जिंदा से घबरावेंगे क्या. Beautiful couplet again. So let's do a brief translation. Approximate translation. Khana is house, dwelling, some place where you stay. Zad is usually used to indicate a place of birth or some kind of lineage you are coming from, right? And then zulf is of course hair. सो खाना ज़ादे जुल्फ़ हैं, तो हम ऐसे ख़ानदान से आते हैं जो कि जुल्फ़ों में नेस्ट किए हैं, रहे हैं, ड्वेल किए हैं. जंजीर से भागेंगे क्यों. सो कमिंग फ्रॉम सच अ लीनिएज, कमिंग फ्रॉम सच अ घराना, वाई विल आई रन अवे फ्रॉम चेन्स. ये तो हमारे खून में है कि चेन लाइक जुल्फ़ों में गिरफ्तार रहना, तो तुम्हारी इन चेन से मैं क्यों भागूंगा. वाई विल आई रन फ्रॉम दीज मेटल चेन्स, राइट? एंड देन द सेकेंड लाइन इज हैं गिरफ्तारे वफा. वर्ड ही बड़ा प्यारा बनाया उन्होंने, गिरफ्तारे वफा. ऐसा लगता है प्यार को डिफाइन कर दिया है 2 वर्ड्स में, राइट? गिरफ्तारे वफा, that I am bound by loyalty. I am bound by faithfulness. Bound by loyalty in love. Bound by faithfulness to love.
है गिरफ्तारे वफा, ब्यूटिफुल, आई मीन या कांट गेट ओवर इट. गिरफ्तारे वफा, गालिब हैज डिफाइंड लव हियर. जिंदा से घबरावेंगे क्या. सो जो इंसान प्यार की फेथफुलनेस, प्यार की लॉयल्टी में बंधा हुआ है, उसको आप प्रिजन के बॉन्डेज से क्या डरा रहे हो. So that is the approximate translation, that I come from a lineage that dwells in the tresses. So do not think that I will run away from chains. It's in my blood. I know how to do this. And then in the second line he says that I am bound to faithfulness and loyalty in love. So again, do not try to scare me with any other kind of bondage of imprisonment or whatever. So गालिब इस शेर में बेसिकली ये कह रहे हैं कि जुल्फ जो है उसकी पकड़ आशिक पे जो होती है, जिस तरह से जुल्फ आशिक को गिरफ्तार करती है अपने अंदर, जिस तरह से जुल्फ में आशिक फंस के रह जाता है, उसका कोई कंपैरिजन ही नहीं है विद हाउ चेन्स वुड बाइंड यू और कंटेन यू. कोई कंपैरिजन नहीं है. चेन्स आर नथिंग. चेन्स एंड देयर वे ऑफ capturing you or shackling you is nothing compared to the way a lover gets entwined, entangled, captured in the tresses of his beloved. ये तो वो गिरफ्तारी जिससे कभी छुटता ही नहीं है. वो चेन्स तो कुछ भी नहीं है इसके सामने. एंड इसके लिए ऑफ कोर्स भतेरों शेर हैं. ये एक अच्छा मौका है. प्रॉबली हमने अभी तक जितनी भी गज़लें कवर की हैं, कभी जुल्फ की जंजीर के बारे में इस तरह से बात करने का मौका नहीं मिला है. सो वी शुड मेक द मोस्ट ऑफ इट, राइट. क्योंकि एक बहुत प्यारा दो कंस्ट्रिक्टिंग कॉन्सेप्ट है जो कि उर्दू पोइट्री में बार बार आता है, राइट. सो हम तो एट DGMZ वी डू टेक एवरी अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्लोर सच कॉन्सेप्ट्स. सो हैदर अली आतिश का ये शेर, जो देखते तेरी जंजीर जुल्फ का आलम, जो देखते तेरी जंजीर जुल्फ का आलम, आसीर होने की आज़ाद आरजू करते. सो द अप्रॉक्सीमेट ट्रांसलेशन इज, इफ दे हैड seen the beauty, alam, right? Seen the beauty of your tresses, of your hair. Had they actually seen your hair up close and personal and get acquainted with its beauty, all these people who roam around free would have prayed to be trapped, imprisoned. Where? In your tresses. So your tresses and their beauty make voluntary prisoners out of free men. ताशु लखनवी का शेर, सौदा तेरी जुल्फों का गया साथ हमारे, सौदा तेरी जुल्फों का गया साथ हमारे, मर कर भी ना छुटे वो गिरफ्तार हम ही थे. So just like we were discussing a few minutes back, the approximate translation is that the bondage of your tresses and your hair on me went with me. Went with me as in went with me even after my death, into my afterlife. Because this is one bondage I could not get released from even after my death. Because death usually is supposed to release you from everything, right? At least everything that entraps you on this earthly world, in this earthly world, right? But आशिक मर के भी इन जुल्फों की गिरफ्तारी से
रिहा नहीं होता है, एंड बाय चॉइस, राइट। आई मीन जैसा वो पहला शेर था कि वॉलंटरली फ्री आदमी खुशी खुशी चल के आता है और बोलता है मुझे प्रिजनर बना लो, राइट, मुझे गिरफ्तार कर लो इनमें। एंड गालिब का एक शेर है, कैद में है तेरे वहशी को, कैद में है तेरे वहशी को वही जुल्फ की याद, कैद में है तेरे वहशी को वही जुल्फ की याद, हाँ कुछ एक रंजे गिरा बारी जंजीर भी था। Beautiful couplet. The approximate translation is that your prisoner, of course, addressing the beloved, right? Your prisoner है तेरे वहशी को, your prisoner, और your crazy lover, वहशी is that also. So है तेरे वहशी को, so your crazy lover, वही जुल्फ की याद, कैद में है तेरे वहशी को, so your crazy lover is sitting in a prison and missing your tresses, and by extension missing being captured, imprisoned, bound by your tresses. So the crazy lover is sitting in the prison and thinking about those tresses. हाँ कुछ एक रंजे गिरा बारी जंजीर भी था। और बड़ी ब्यूटिफुली नॉनशलेंटली सेकेंड लाइन में बोलते हैं कि हाँ थोड़ा बहुत तकलीफ जंजीरों का भी था जो मेरे पाँव में डाली थी, बट ज़्यादा कुछ नहीं, दिमाग में फितूर जो था वो जुल्फ़ों का ही रहा, जबकि प्रिजन में बैठा हुआ था जंजीरों से जकड़ा हुआ, तो भी वहाँ थोड़ा बहुत फील हुई वो जंजीरें, ज़्यादा नहीं, हाँ कुछ एक थोड़ी बहुत। ब्यूटिफुल कपलेट। एंड देन ऑफ कोर्स पहली लाइन में उन्होंने बोल दिया खाना ज़्यादा जुल्फ़ें जंजीर से भागेंगे क्यों, सो द चेन्स डू नॉट स्केयर मी बिकॉज आई एम ऑलरेडी बॉन्डेड बाय ट्रेसेस ऑफ माई बिलवेड, एंड है गिरफ्तारे वफा जिंदा से घबरावेंगे क्या। सो दूसरी लाइन में वो बोल देते हैं कि तुम्हारी ये इम्प्रिजनमेंट भी मुझे नहीं डराती, क्योंकि मैं तो ऑलरेडी गिरफ्तार वफा हूँ, मैं तो ऑलरेडी प्लेज्ड हूँ, सर से पाँव तक प्लेज्ड हूँ, कैप्चर्ड हूँ, इम्प्रिजन्ड हूँ बाय द लॉयल्टी एंड फेथफुलनेस आई ओ टू माई बिलवेड इन लव। बांध दिया उसने, उससे ज़्यादा नैरो शैकल कोई हो नहीं सकता, उससे ज़्यादा नैरो बॉन्डेज कोई हो नहीं सकता, कोई लीवे नहीं है। बिलवेड से प्यार करने के लिए जो फेथफुलनेस और लॉयल्टी चाहिए उसमें तो ज़रा सी भी हवा भर की जगह नहीं है, इतनी नैरो है वो सड़क जिस पे मुझे चलना पड़ता है। तो ये प्रिजन तो फिर भी काफ़ी वाइड है। सो या गिरफ्तारे वफा जिंदा से घबरावेंगे क्या। एंड अगेन हसरत मोहानी का एक और शेर, मैं गिरफ्तारे उल्फत सयाद, मैं गिरफ्तारे उल्फत सयाद दम से छूट के भी रिहा ना हुआ। वही बात कि क्या कहते हैं, जो प्यार में इम्प्रिजन्ड है, जिसको प्यार ने कैप्चर कर लिया है, जिसको पैशन ने कैप्चर कर लिया, उसके लिए तो फिर रिहाई है ही नहीं। अब 4-5 और प्रिजन आके चले जाएं अगर दुनियावी, तो कोई फ़र्क ज़्यादा पड़ता नहीं है, क्योंकि ये बंदा तो हो गया कैप्चर, हमेशा हमेशा के लिए, मर के भी नहीं छूटेगा। तो ऐसा कैप्चर होता है आशिक का। एंड ऑफ कोर्स दाग दहलवी का शेर, सदके में तुमने छोड़ दिया है बहुत असीर, सदके में तुमने छोड़ दिए हैं, माय अपॉलॉजीज, सदके में तुमने छोड़ दिए हैं बहुत असीर, मैं भी रिहा हुआ कि गिरफ्तार ही रहा। So the approximate translation is that in one of your spells of charity, right, in one of your spells of charity, my dear beloved, you did free many of your voluntary prisoners. I was one of them, and I'm still captured, and I still remain captured, I still remain imprisoned. अगर beloved छोड़ भी दे तो छुटते नहीं हैं, बिलवेड भी अगर छोड़ दे तो छुटते नहीं है, मौत भी आ जाए तो छुटते नहीं हैं। जुल्फ़ों और
गिरफ्तार वफा से आशिक कभी छुटते नहीं हैं. एंड काबिल गौर ये बात है कि ये जो इम्प्रिजनमेंट है, इट इज़ सेल्फ इम्पोज्ड. बिलवड नहीं बोलती है लवर को कि ये करो और वो करो, मेरी जुल्फ़ों में गिरफ़्तार हो जाओ और मुझे ये गिरफ़्तार वफ़ा हो जाओ. सेल्फ इम्पोज्ड, वॉलेंटरी. आज़ाद घूम रहे थे और ख़ुद वॉलेंटरीली जाते हैं और बोलते हैं कि अपनी जुल्फ़ों में मुझे कैद कर लो, एंड नाउ मैं खुद अपने आप को गिरफ़्तार वफ़ा करता हूँ फॉर द लव आई हैव फॉर यू. एंड इस टाइप के सेल्फ इम्पोज्ड इम्प्रिजनमेंट से आप खुद ही सोच सकते हैं किस टाइप की पेशेंस, किस टाइप का सेल्फ कंट्रोल, किस टाइप का डिसिप्लिन आ जाता है लवर में. ऐसे लवर को जब आप दुनियावी चेन्स और दुनियावी प्रिजन दिखाते हो तो बहुत नॉनशलेंटली, बहुत कूली उसमें से गुजर जाएगा, क्योंकि उसने तो बहुत ऊंचे लेवल के टेस्ट पास कर चुका है अब तक वो, एज फार एज इम्प्रिजनमेंट एंड सेल्फ कंट्रोल एंड पेशेंस गोज, राइट. ओके, सो दैट टेक्स केयर ऑफ खानाज़ादे जुल्फ़ हैं जंजीर से भागेंगे क्यों, हैं गिरफ्तार वफ़ा जिंदा से घबरावेंगे क्या. लास्ट कपलेट. मक्ता. है अब इस मामूरे में कहते गमे उल्फत असद, हमने ये माना कि दिल्ली में रहें खावेंगे क्या. लेट्स डू एन अप्रॉक्सीमेट ट्रांसलेशन. Now this one has some big words in it that we are encountering at least at DGMZ for the first time. है अब इस मामूरे में कहते गमे उल्फत असद. Mamura. So Mamura is usually used for a place that is thriving. Lot of people bustling with activity, energetic, flourishing, growing. A city, right, bursting at its seams with lot of life and activity in it. So something alive and thriving. है अब इस मामूरे में. So in this thriving city, कहते गमे उल्फत असद. Now कहत is a drought, some kind of scarcity, a famine, dearth of resources. And then game ulfat, sorrow of love. So Ghalib is saying in this flourishing, prospering, thriving city, there seems to be a famine, a scarcity, a drought of sorrow of love. Yes, sorrow coming from love. And then in the second line he says, हमने ये माना, okay, I agree, दिल्ली में रहें, I will stay in Delhi. Delhi is his city. खावेंगे क्या? But what will I eat? Okay, I will stay back in this city. But what will I eat? So, सबसे पहले तो मामूरा. So Mamura, like I said, something which is active, alive, thriving, flourishing. And just to get the sense of that word a little better, मीर तकी मीर का ये शेर. तन के मामूरे में, तन के मामूरे में यही दिलो चश्म. तन के मामूरे में यही दिलो चश्म, घर थे दो सो खराब हैं दोनों. Approximate translation is, in this city of body, in the city of my body, there were two things which were the most alive. So Mamura matlab something alive, right? So in this city of my body, there were two things which were very alive. Dilo chashma, the heart and the eyes. घर थे दो सो खराब हैं दोनों. And these were the two places where everything resided, and today both these houses are broken or are under attack, if you may.
Now कहत, right? Drought, scarcity. So कतील शिफाई का ये शेर, just to get a little more sense of the word. है शहर में कहत पत्थरों का, है शहर में कहत पत्थरों का, जज्बात के जख्म खा रहा हूं. So basically the approximate translation is, in this city it seems there's a drought, famine, scarcity of stones, actual stones, and that is why I am being wounded by feelings, emotions. The emotions and the feelings I'm experiencing are wounding me like stones being hurled at me. Is there a scarcity? Is there a drought of stones in this city that I'm being made to live through emotions which hurt me, just like stones being hurled at me. And then the third word complex in the first line, game ulfat. Right? So सिकंदरपुरी का ये शेर, गमे उल्फत जिसे हासिल नहीं है, गमे उल्फत जिसे हासिल नहीं है, वो कोई और शय है, दिल नहीं है. Approximate translation is, if it does not have game ulfat, sorrow of love, then it must be something else, because it cannot be a heart. A heart thrives on this. A heart lives on this. A heart needs it. The sorrow from love. महमूद बेग साज का ये शेर, गमे उल्फत ने लुत्फ़े ज़िंदगी की आबरू रख ली, गमे उल्फत ने लुत्फ़े ज़िंदगी की आबरू रख ली, ये वो दुश्मन है जिसने दोस्ती की आबरू रख ली. Beautiful couplet. Approximate translation is that this sorrow of love is what saved the reputation, which saved the reputation of life and its grandeur and its magnificence, right? Lutf-e zindagi, taste for life. So it is the sorrow of love that saved the reputation of life having a taste, having a grandeur. Because basically, by extension, a life which does not have sorrow of love is a tasteless, bland life. And in the second line, he says, "Ye wo dushman hai jisne dosti ki abru rakh li." So, despite having the bad reputation of being the enemy, of being the party pooper, right? This is what actually served life as a true friend. Because if this love and the grief associated with it had been absent, life would have been totally tasteless. And all the hype about life having a flavor and a taste and a grandeur would have all gone down the drain. So though grief caused by love tends to get a bad reputation, this is what brings flavor to life. And then Anand Narayan Mulla का ये शेर, अश्के गमे उल्फत में, अश्के गमे उल्फत में एक राज़े निहानी है, अश्के गमे उल्फत में एक राज़े निहानी है, पी जाओ तो अमृत है, बह जाए तो पानी है. The approximate translation is that these tears that one lands up shedding due to the sorrow love brings to your heart, these tears have a secret, miraculous healing power. Healing power, mystical power, divine power, however you want to perceive it. If you were to drink these tears, keep them unushed, these tears have the power of Amrit, right? The elixir of life. And if you shed them, then they are
as good as water. So वो जो ताब और वो जो सहने की कैपेसिटी है, जो प्यार का गम आपको अता करता है, वो अपने आप में एक अमृत है. So you can see that ये जो गमे उल्फत है, ये आशिक को एक ब्लेसिंग के रूप में मिला है. दो रेपुटेशन ऐसी है कि भाई ये तकलीफ़ पहुंचाता है, दुख पहुंचाता है, बट ये जो गमे उल्फत है, ये आशिक को एक मामूली इंसान से एक रूहानी रेल में ले जाता है, क्योंकि ये गमे उल्फत आशिक को सिखाता है वो ताब, वो निहानी का सीक्रेट, राइट. एंड ऐसा लगता है कि ये जो गमे उल्फत है, ये आशिक के लिए एकदम खाना पानी की तरह है. अगर ये नहीं होगा तो आशिक मर जाएगा. सर्वाइवल के लिए ज़रूरत है. तभी वो गालिब कह रहे हैं कि हमने ये माना कि दिल्ली में रहें, खावेंगे क्या? अगर तुमने मुझसे मेरा गमे उल्फत ले लिया तो मैं खाऊंगा क्या? मैं तो आशिक हूँ. मुझे तो जैसे लोगों को पानी, हवा और खाना चाहिए, मुझे गमे उल्फत चाहिए. और अगर तुम्हारे शहर में, तुम्हारे थ्राइविंग शहर में, एंड अगेन कंट्रास्ट, राइट, थ्राइविंग शहर में इतना बड़ा अकाल पड़ा हुआ है गमे उल्फत का, कंट्रास्ट, मेजर कंट्रास्ट ड्रॉ किया. एंड वर्ड्स देखिए कैसे कैसे उठाए हैं, मामूरा एंड कहत. ना तो कभी सुने थे और अब समझ में जब आए हैं तो पता चलता है कि दे आर एट द टू एंड्स ऑफ द स्पेक्ट्रम. मामूरा एक ऐसी जगह जहाँ पे थ्राइविंग, फ्लरिशिंग हर चीज़, एंड कहत ड्राउट, फेमाइन, डेजर्ट, टोटली डिवॉइड ऑफ एनी रिसोर्सेज. तो गालिब कहते हैं तुम्हारे इस सो कॉल्ड खिलते प्रॉस्पर करते हुए शहर में तो अकाल पड़ा हुआ है गमे उल्फत का. और मैं आशिक हूँ, शहर से प्यार करता हूँ, ये मेरा शहर है, रुक जाऊँगा, पर मैं खाऊँगा क्या? क्योंकि आशिक के लिए तो उसकी जो स्ट्रेंथ है, उसकी जो नरिशमेंट है, सस्टेनेंस है, वो तो गमे उल्फत से ही आती है. एंड इसमें भी एक कहने को एक दुख की बात है, राइट. अगर उल्फत की भूख है तो फिर उल्फत की रोटी से मिटनी चाहिए, पर उल्फत तो मिलती नहीं है. दिस इज़ अनरिक्वाइटेड लव. सो भूख तो उल्फत की होती है, पर मिटती गमे उल्फत की रोटी से है, क्योंकि वही मिलता है आशिक को. एंड आशिक इज़ फाइन विद इट. आशिक इज़ फाइन विद इट. उसको उसका गमे उल्फत दे दो, ही विल सर्वाइव. ही विल सर्वाइव. एक दूसरा इसमें कॉनोटेशन जो ध्यान में आता है, दिल्ली, क्योंकि उन्होंने बोला है ना स्पेसिफिकली, वेरी रेयर कि आप किसी शहर, किसी इंसान, किसी जगह का नाम इस तरह से अपने शेर में यूज़ करें. तो एक कॉनोटेशन ये भी हो सकता है कि शायद ये शेर उन दिनों में लिखा गया है जब दिल्ली वॉज गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ troublesome times, right? वो जो म्यूटनी थी, रिवोल्ट था, ब्रिटिशर्स वर capturing India. Delhi was the capital and the seat of power, and power was changing hands. Power was changing hands. Ghalib was a witness to it. And कई लोग दिल्ली छोड़ के भागे. And कहा जाता है गालिब को भी 2-3 बार ये मशवरा दिया गया कि दिल्ली छोड़ के भागो, क्योंकि गालिब की पैदाइश तो आगरा की थी, आगरा जा सकते थे. गालिब को भी ये मशवरा दिया गया, बट गालिब इंसिस्टेड. वो दिल्ली को अपना समझते थे, उनको लगता था दिल्ली मेरी है, मैं दिल्ली का हूँ. तो वो रुके दिल्ली में, और पूरे म्यूटनी दिल्ली में रुके, एंड अपनी आँखों से देखा. ही विटनेस्ड द डिस्ट्रक्शन of the Mughal Empire. He witnessed the fall of the Mughal Empire into the hands of the Britishers. So हो सकता है ये उस वक्त का लिखा हुआ शेर है जहाँ गालिब कहना चाह रहे हैं कि शहर में हो तो बहुत कुछ रहा है, दूर से तो बड़ा थ्राइविंग लग रहा है कि पुराना पावर जा रहा है, एक नया पावर आ रहा है, एंड ऑफ कोर्स वेस्टर्न influences were coming through with the Britishers, right? Some of them were progressive, some not as much, right? So ऐसा ऊपर से तो ऐसा लग रहा है कि शहर
ultimately will change for the better. But in my humble opinion, इस शहर में तो अकाल है. There is a scarcity of love and hence scarcity of grief stemming from love. So गमे उल्फत गम के बारे में नहीं है. गमे उल्फत उल्फत के बारे में है. उल्फत है तो गमे उल्फत है. सो गालिब कह तो गमे उल्फत रहे हैं, बट बेसिकली कह रहे हैं उल्फत नहीं रही. वो लोग नहीं रहे, वो प्यार नहीं रहा, वो जज्बा नहीं रहा. और हम जैसे आशिकों के लिए जो गमे उल्फत था वो भी नहीं रहा, क्योंकि उल्फत ही नहीं है टू बिगिन विद. तो अब मैं खाऊंगा क्या? एज अ आशिक मैं तो स्टार्व कर जाऊंगा. एज अ पर्सन हु सर्वाइव्स ऑन लव and the grief, pain, anguish associated with love. As a शायर also, शायर भी इसी चीज़ पे सर्वाइव करता है, आशिक भी इसी चीज़ पे सर्वाइव करता है. So as a शायर भी underfed, as a आशिक भी underfed. And that is why गालिब says कि थोड़ा मुश्किल है मेरे लिए. सोच रहा हूँ मैं रुक जाऊँ दिल्ली में, पर खाऊंगा क्या? And कई जगह कई शेरों में शायर खाना ही लिखते हैं, जख्म खाना. सो इट ब्रिंग्स दैट फूड एंड ईटिंग कॉनोटेशन टू इट, दैट एक्चुअली ऐसा लगता है कि आशिक को ही नीड्स द ब्रेड ऑफ द ग्रीफ फ्रॉम लव टू सस्टेन हिमसेल्फ. इफ ही डजंट गेट दैट ब्रेड ही विल स्टार्व. गालिब का ही ये शेर है. अगेन गज़ल 18, वी हैव कवर्ड इट. इट इज़ इन द 3rd एपिसोड ऑफ इट. इशरते पाराए दिल, इशरते पाराए दिल, ज़ख्म तमन्ना खाना, लज्जते रीशे जिगर, गर के नमकदा होना. फूड 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 मिक्स्ड विद ग्रीफ, राइट? सो गालिब इस शेर में कह रहे हैं कि द अप्रॉक्सीमेट ट्रांसलेशन ऑफ द कपलेट इज दैट फॉर द पीसेस ऑफ माई हार्ट, and pieces of heart, basically broken heart, right? For the pieces of my broken heart, they thrive on zakhme tamanna khana. They thrive on the wounds caused by unfulfilled desires, unrequited love. And then lazzate rishe jigar, and the wounds of my liver, they thrive on being gar ke namakda hona, to be submerged in salt. Not sprinkled with salt, not rubbed with salt. No, submerged, drowned in salt. So I thrive on that pain stemming from love, is what Galib. I eat that, right? Almost foodie terms में उसको बयां किया. And then मीर तकी मीर का शेर, ज़ख्म बिन, गम बिन और गुस्सा बिन. ज़ख्म बिन, गम बिन और गुस्सा बिन अपना खाना हराम होता है. So the approximate translation is without wounds, without grief, and without anger. If I eat anything, it is haram for me. It's a sin. It is, I cannot eat. This is what I eat as a lover. ज़ख्म, गम और गुस्सा. सो क्लियरली वही जज्बा गालिब अपने इस शेर में लाए हैं कि भाई रुक तो जाएंगे दिल्ली में, पर ऐसी जगह रुकना थोड़ा मुश्किल है हमारे लिए, एक शायर की तरह भी और एक आशिक की तरह भी, जहाँ गमे उल्फत का कहत है, कमी है, ड्राउट है, फेमाइन है. हमको कोई परवाह नहीं तुम्हारा शहर कितना थ्राइव करेगा, तुम्हारा शहर कितना प्रॉस्पर करेगा. एज अ आशिक, एज अ शायर, आई विल बी स्टार्व टू डेथ इन अ सिटी दैट इज डिवॉइड ऑफ लव एंड द ग्रीफ लव ब्रिंग्स. बिकॉज एज अ पोएट एंड एज अ लवर, आई नीड दिस टू sustain myself. Okay, so that finishes the last couplet of this ghazal. है अब इस मामूरे में कहते गमे उल्फत असद, हमने ये माना कि दिल्ली में रहें खावेंगे क्या. That finishes the ghazal for us too, which means that next week we get to start ghazal 21. And ghazal as in ghazal of the ghazals. ये ना थी हमारी किस्मत की विसाले यार होता.
अब इस आप सोच ही सकते हैं कि व्हाट आर वी गेटिंग इनटू, राइट? हर जगह गाने, मूवीज़ आपने सुनी होगी ये गज़ल. सो वी आर गोइंग टू एंजॉय गेटिंग इनटू दिस नेक्स्ट गज़ल. Okay. Now, as always, for any viewers who are tuning for the first time to the podcast, my strong recommendation would be to access the DGMZ introduction episode. Because एक बार आप वो episode देख लेंगे, you will get a good insight into the objective and motivation behind the podcast. हम यहाँ क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? Simply put, हम यहाँ गालिब को enjoy करने की कोशिश करते हैं. हम यहाँ सिर्फ गालिब को enjoy करने आते हैं. अगर उसके तहत हम गालिब को डिकोड कर पाएँ, डिसिफर कर पाएँ, थोड़ा ट्रांसलेट कर पाएँ, थोड़ा समझ पाएँ, ये सब हमारे लिए बोनस है. बट बेसिकली DGMZ पॉडकास्ट में हम हर वीकेंड ट्यून करते हैं टू इन्जॉय गालिब. नो लिमिट्स. वी कैन गो एनीवेयर एंड एवरीवेयर टू इंश्योर दैट वी गेट टू इन्जॉय गालिब. समझ में आ जाए तो बहुत बड़ी बात है, बोनस है वो. Also, for the new viewers, for your reference, we are running 2 playlists currently. Main playlists. एक में हमारे ये गालिब के weekend episodes हैं, where we get into one ghazal from Diwan Ghalib every time. And then there is a playlist of bonus episodes where we still get into topics around Urdu poetry, Mirza Ghalib, but not the ghazals. And under that bonus playlist, we currently have a DGMZ mini-series running, Laila Majnu, where we are getting into the story, the immortal love story of Laila and Majnu. So if that is something which interests you, do explore the bonus playlist. That would have all the episodes we have posted so far. And of course, we have future episodes coming up. If you liked the impression from today, do click like, share your comments, share your feedback. We are always delighted to hear from you. If you know somebody who would enjoy listening to this content, request you to share it via social media, Instagram, WhatsApp, YouTube, Facebook. And yeah, that is all I had for today's episode. Sending a lot of love and light to all you dear viewers. Thanks for watching.